mountain ecosystem in which we are living, mostly Kashmir, Himalayas. And I also welcome other guests who will be joining. Profound implications for the Kashmir Valley's environment, ecology, and agrarian economy is experiencing erratic weather patterns and have resulted in the changing water availability, altered agriculture cycle attending. This workshop and panel discussion aims to bring threats posed by climate change. The deliberations will focus on acceleration measures and proposing policy recommendations to enhance resilience. Actually, convenient EPG, Faiz Bakshi Saab, for allowing us on our privilege as well as an Institute of Engineers, and I also thank accepting his invitation in getting this seminar. Considerations, deliberations about the pressing which we are seeing in today's climate environment. In headline, we are 40% still deficit even if we have some snow and rain, and we have a motive at the Institution of Engineers that once we get all the revised with the expert panelists and finally submitted to the departments which are decision makers, and please come on stage, have a welcome address. And center in Jammu and Kashmir. So we got both sides. Then we have to know best how to handle when the tragedy strikes us. And then we have got these all there's a role cut out for doing any presentation, but we will be listening, we'll be hearing to you. So what this workshop is about, different levels of government. Now we had some time ago, we had a briefing, we had a meeting with a chief minister on regular issues, what are being faced here. And today, अब मैं अपनी ज़बान कल मुझे एक दोस्त कह रहा था कि अब इस सेमिनार की क्या जरूरत है, मैंने कहा क्यों, कहा बारिश तो हो ही गई, अब आप बैठे आराम से रिलैक्स करेंगे. Of Islamic University of Science and Technology and illuminary in the fields of environmental sciences, geospatial technology. Grateful to him for having accepted and consented to be this chair. Dr. Jasia Bashir, she's from Department of Planning and Geomatics, Islamic University. Then we have got Dr. Khurshid Iqbal, the reputed doctor, and if we talk about patterns, changing precipitation patterns in this region, also the extremities associated. These are some of the headlines from leading dailies highlighting the extreme weather events in record high temperatures, also unexpected and early snowfall, and changing some of the evidences from the leading dailies. Now we will talk about these evidences in terms of data. Proactive, as usual, looking at the crucial advocacy issues which are there for us to follow as well. They're always, proactive about conducting and hosting, I guess that I have about 15 minutes. Can someone please, yeah. I'll try to be as brief and as effective as possible. I can see a long time. तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को आज एक प्लेटफॉर्म पे देखे. That this is a problem. So if we don't act now, then we will be in a very bad situation. Our progeny will curse. Get impacted directly, human health. मैं अभी बना रहा था एक response. I was just filing a response before coming to this place. Forest से और tree cover जो है हमारा, तो that is absorbing 17.57. तो इतना potential है हमारा. That means we are a net negative region by 8.87. I am sharing. If you want me to share in future also. How credible is this? 8.66. This is all the data जो हमने लिया. Doctor or the health facility available. There, I will go to the priority to reduce the vulnerability against climate change. Similarly, water sector का हमने अलग से किया है. Health sector का हमने separately लिया. इसमें भी there are waterborne disease, vector-borne disease, presence of hospital भी आपका system कितना vulnerable है. Now, अब
जो हमें पैरामीटर्स वहां से निकले कि कौन चीज बनाता है। ये एक ग्लोबल फिनोमिना, अगर आप देखें कि ग्लोबल में जो जितने भी थ्रेट्स है ह्यूमैनिटी को, तो क्लाइमेट चेंज इज नंबर 1, लिस्टेड एज द नंबर 1 थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। तो उस हिसाब से आप कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें या लद्दाख की, तो यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट थ्रेट है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वी आर फेसिंग द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और हमारी कंट्रीब्यूशन जो क्लाइमेट चेंज की तरफ बहुत कम है। हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उतना क्लाइमेट चेंज के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, या आप देख लीजिए कश्मीर में लास्ट ईयर भी, इस साल भी, पिछले खासकर 5, 6, 7 साल से जो इसके इम्पैक्ट से बिल्कुल एविडेंट हो रहे हैं। लास्ट ईयर तो हम विंटर स्पोर्ट्स भी नहीं कर पाए गुलमर्ग में, इस साल भी आपके जो विंटर स्पोर्ट्स है कैंसिल करनी पड़ी, या बाकी आप इम्पैक्ट्स देख लीजिए जो वाटर रिसोर्सेज पर है, जो हमारे एग्रीकल्चर पर है या एनर्जी पर है, जो बिजली यहाँ पैदा होती है, उस पर भी बड़े स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट्स है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। तो इसलिए, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप देखिए यहाँ के जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी है, उसने भी कहा कि दिस इज़ द बिगेस्ट थ्रेट दैट वी आर फेसिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है जो आज वर्कशॉप है, इसमें ठीक है ये तो बहुत ज़रूरी है। मुझे इवन आप देख लीजिए कॉमन मैन हो या जर्नलिस्ट हो या कोई साइंटिस्ट हो या कोई प्रोफेसर हो, उतनी अगर आप उससे पूछेंगे ये क्या है ये क्लाइमेट चेंज, बहुत इसमें एक गैप है बहुत लोगों को इसकी। तो ऐसे वर्कशॉप करने से और ज़्यादा जानकारी बढ़ जाती है। प्लानर्स भी हो, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी हो, सिविल सोसाइटी हो, एकेडेमिया हो, तो उससे जितना हम ये डिस्कस कर ले उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है। दो इश्यूज है, एक तो क्लाइमेट चेंज है जो ग्लोबल फिनोमेना है, इसके जो इंडस्ट्रियल बिकॉज इसमें ग्रीन हाउस गैसेस हम कहते हैं, जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो जाएंगे तो उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाए। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस बहुत कम यहाँ लेकिन चूंकि क्लाइमेट जो है ग्लोबल फिनोमिना है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब हम कहते हैं तो वहीं से ये आते हैं, हवाएं आती है, तो हमारे पास ये बढ़ जाता। लेकिन ये जो एनवायरनमेंट की बात आप कह रहे हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो जो टूरिस्ट की वजह से जो डिग्रेडेशन हो रही है, ये तो बिल्कुल लोकल है, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। या तो हम लोकली रिस्पॉन्सिबल है या जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं। देखिए आप पहलगाम जाइए, गुलमर्ग जाइए, सोनमर्ग जाइए समर में, आप देख लीजिए हम लोकल होते हैं वहाँ कितना डिग्रेडेशन हम कर रहे हैं, या बाहर से जब टूरिस्ट आता है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे अब कुछ टाइम से हम 2-3 महीने से हम सस्टेनेबल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें यहाँ टूरिज्म को सस्टेन करना है इन द लॉन्ग रन, इट हैज़ टू बी प्रमोटेड इन अ वे दैट इज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली। तो इसमें इको टूरिज्म मतलब ऐसी तरह वी कांट प्रमोट इट जस्ट नंबर्स, मास टूरिज्म हमें प्रमोट नहीं करना है, यहाँ हमें सस्टेनेबल टूरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हर एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वाटर सिक्योरिटी हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, चाहे लाइवलीहुड्स हो। मतलब बहुत से हमारे जो यहाँ की पॉपुलेशन है बहुत इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर के साथ, हॉर्टिकल्चर के साथ, टूरिज्म के साथ, और इस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ की गवर्नमेंट को तो इज़ द फर्स्ट मेजर रोल जो है गवर्नमेंट का बनता है, जो प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग उनको करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक काम एज एन इंडिविजुअल भी मेरा रोल है, एज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड देन द गवर्नमेंट। सो ऑल ऑफ अस हैव अ रोल टू जॉइन हैंड्स एंड address this issue through cooperation and collaboration.